Hello, 9th Standard, and welcome to SS class. Today we are going to continue with chapter 17, that is natural vegetation. And in that, we are going to continue from types of natural vegetation. In our previous lecture, we studied what is natural vegetation, right? So I'll start with the topic types of natural vegetation. There are 5 types of natural vegetation. How many types of natural vegetation are there in our country? 5 types of natural vegetation, right? और 5 types of natural vegetation जो है, it is on the basis of altitude, मतलब height के accordingly, soil हाइट अलग है, सॉइल्स डिफरेंट है, रेनफॉल ज़्यादा और कम है, टेम्परेचर ज़्यादा और कम है, उसके कारण नेचुरल वेजिटेशन जो है वो रीजन की क्या होती है, वेरी होती है, अलग अलग होती है, राइट. एंड दैट इज वाई वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. Existence and growth of any vegetation depends on climate of a region. In the regions of identical climate, the vegetation is mostly identical. अगर किसी एरिया का सेम क्लाइमेट है, राइट, अगर कुछ एरिया का सेम क्लाइमेट है तो वहाँ का वेजिटेशन भी सेम होगा क्योंकि क्लाइमेट सेम है. Regions of such ecological similarities are called natural vegetation regions. तो let us see कि किस तरह है. On the basis of altitude, that is height, soil, rainfall, and different temperature, natural vegetation regions can be divided into 5 types. और ये जो regions जो है ये हमने कितने types में divide किया है? 5 types में divide किया है natural vegetation का region. Which are those 5 types? Tropical rainforest, tropical deciduous forest, tropical desert vegetation, temperate forest and grassland, mangrove or tidal forest. Now tropical rainforest, इसमें क्या है? देखो tropical rainforest, the name itself suggests जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती हो, है ना? The tropical rainforest, you have to underline this. Tropical rainforests are found. कहाँ पर हमें ये tropical rainforest कहाँ पर मिलते हैं? They are found in hot and humid regions, जहाँ पर annual rainfall exceeds 200 centimeter, right? Tropical rainforest कहाँ पर हमें मिलते हैं? Where annual rainfall जो है वो कितना होता है? Exceeds more than 200 centimeter, यानी बहुत ज़्यादा rainfall होता है. And temperature is also more than 22 degrees Celsius. Temperature is also more and rainfall is also more. So that region has what kind of vegetation? Tropical rainforest. अब ये rainforest कहाँ पर हैं? Tropical rainforests are found in which region? कौन से region में है? Such forests are found in area of heavy rainfall of Western Ghats, Lakshadweep, Andaman Nicobar Islands, upper regions of Assam, कोस्टल तमिलनाडु. ये रीजन्स में आपको कौन सा नेचुरल वेजिटेशन, कौन सा फॉरेस्ट मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है. और वहाँ पर किस तरह के ट्रीज मिलते हैं? ट्रीज फाउंड हियर आर mahogany, ebony, rosewood and rubber, etc. What kind of trees are found? Tropical rainforest में किस तरह के trees होते हैं? mahogany, ebony, rosewood, rubber. ठीक है. अब ये ट्रीज जो हैं, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फीचर्स क्या है, वो किस तरह लगते हैं? trees here are about 60 meters tall or even more. There is more humidity due to scrubs. There is no season here like autumn, as these trees are evergreen. The forest is also called evergreen forest. यहाँ के जो trees जो हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, 60 meters tall या उससे भी ज़्यादा, right? और यहाँ पर कोई ऑटम सीजन नहीं है. ऑटम सीजन यानी पतझड़ की कोई सीजन नहीं है. लीव्स डोंट शेड, द ट्रीज डोंट शेड देयर लीव्स, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक ट्रीज पर जो लीव्स होती है, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा रेनफॉल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये ट्रीज कैसे हैं? एवरग्रीन है, फॉर एवर, राइट? दैट इज वाई दिस फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट.
Okay, then next comes ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में किस तरह का टेम्परेचर और रेनफॉल है, लेट अस सी. जनरली सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स विच आर हैविंग 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. कितना रेनफॉल वहाँ पर फॉल होता है? एनुअल रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर्स. कौन कौन से रीजन्स में है ये फॉरेस्ट? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमालयन फुटहिल्स, वेस्टर्न ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, eastern slopes of eastern ghats, Vindhya and Satpura range. There is a large proportion of these forests in India. ये जो अभी हमने regions पढ़े, areas पढ़ी, वहाँ पर हमको किस तरह का forest मिलता है? Tropical deciduous forest. ठीक है? What kind of trees are found over here? कौन से trees deciduous forest में मिलते हैं हमें? Teak, sal, sesame, sandalwood, kher, bamboo, etc. These are the trees which grow in tropical deciduous forest. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं? द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ट्री हियर इज दैट ट्री शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स ड्यूरिंग ऑटम. जैसे अभी हमने रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन में क्या पढ़ा कि ट्रीज जो है दे डोंट शेड देयर लीव्स. डेसिडियस फॉरेस्ट में ट्रीज जो हैं अपनी लीव्स को शेड करते हैं, यानी पेड़ों पर जो पत्ते होते हैं वो 6 to 8 वीक्स ड्यूरिंग ऑटम के टाइम पर नहीं होते हैं. राइट, एवरी स्पीशीज हैज डिफरेंट टाइम टू शेड द लीव्स. वहाँ के जो ट्रीज हैं वो एक साथ अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं. हर एक स्पीशीज जो है उसका अलग अलग टाइमिंग है टू शेड देयर लीव्स. सो ऑल द ट्रीज आर नेवर विदाउट लीव्स ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर सीजन. देखो, अगर कोई फॉरेस्ट है और एक ही टाइम पे सारे ट्रीज जो हैं उनकी अगर लीव्स शेड हो जाए तो पूरा फॉरेस्ट कैसा होगा? खाली हो जाएगा, क्योंकि ट्रीज पे लीव्स ही नहीं होंगी. लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है? अलग अलग स्पीशीज के जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी जो ट्री लीव्स जो हैं वो अलग अलग टाइम पे शेड करती हैं. वो अलग अलग टाइम पर क्या करती हैं? शेड करती हैं. इसीलिए पूरे साल पूरा ये जो फॉरेस्ट होता है वो पूरा एम्प्टी नहीं होता है, खाली नहीं होता है. राइट, they have seasons. As these trees shed their leaves according to seasons, they are called monsoon forest. सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का को हम क्या बोलते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं. जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, वैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट कम्स ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन. अब डेजर्ट से नाम से ही हमें पता चलता है यहाँ पे दैट मीन्स रेनफॉल कम होगा. राइट, डेजर्ट वहाँ पर क्या है? सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स विच रिसीव लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. वहाँ पर क्या है? लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, नहीं के बराबर या कम, 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल वहाँ पर फॉल होती है. रीजन्स कौन कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट रीजन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एट्सेट्रा. दीज आर द रीजन्स जहाँ पर कम रेनफॉल होती है. इसीलिए वहाँ पर हमें कौन सी वेजिटेशन, कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन. ठीक है, तो वहाँ पर कौन से ट्रीज होते हैं? डेट्स, जुजुबा, आसिया, कैक्टस, खिजड़ो आर द कॉमन ट्रीज फाउंड ओवर हियर. अब ये ट्रीज को कम रेनफॉल में भी वो ग्रो हो सकते हैं, इसीलिए ये ट्रीज वहाँ पर ग्रो होते हैं. अब ये ट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस तरह के ट्रीज होते हैं? रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स हियर आर लॉन्ग, डीप एंड वाइड स्प्रेड. लीव्स आर शॉर्टर विच रिजल्ट इन स्लोअर evapotranspiration प्रोसेस. अब यहाँ का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रीज है ना, वो ट्रीज के जो रूट्स हैं वो बहुत डीप होती हैं, बहुत अंदर तक होती हैं और बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है. क्यों? क्योंकि वो रूट्स जो है वो क्या करती हैं? दे सर्च वाटर, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल कम होता है ना. तो इन सर्च ऑफ वाटर क्या होती हैं? वो रूट्स जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर लेती हैं और बहुत डीप तक होती हैं, बहुत लॉन्ग होती हैं. ठीक है, यहाँ के ट्रीज की ये जो ट्रीज हैं इनकी जो लीव्स होती है वो भी शॉर्ट होती है. क्योंकि शॉर्ट होती है, आपने साइंस में पढ़ा है, क्योंकि अगर शॉर्ट होगी तो वो जो प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का, एवोपोट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी कैसा होगा? कम होगा, शॉर्ट होगा, स्लो होगा, क्योंकि द साइज ऑफ द लीव्स इज स्मॉल. ठीक है,
नेक्स्ट कम्स टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। अब टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जिसको हम हिमालयन वेजिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हिमालयन वेजिटेशन है, टेम्परेट फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स जो हैं, ये देखो डिवाइड की हुई हैं यहाँ पर 3 कैटेगरीज में। कैसे? अगर यहाँ पर हाइट है 1000 to 2000 मीटर्स, राइट, वो एरिया कौन सी है, रीजन कौन से हैं? हाई माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, माउंटेनियस एरिया ऑफ उत्तराखंड, ये सब एरिया में कौन से फॉरेस्ट हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। और ट्रीज कौन कौन से हैं? ओक एंड चेस्टनट। कौन से हैं? ओक एंड चेस्टनट। फिर यहाँ पे हिमालयन वेजिटेशन में अगर उनकी हाइट जो है और ऊपर 1500 से 3000 मीटर्स की अगर हाइट है, तो वो कौन सी एरिया में आ जाता है? सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयन, हायर एरियाज ऑफ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट आपको मिलेंगे? कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट, आपने वो क्रिसमस ट्री देखा है ना, राइट, इट इज वन ऑफ द कॉनिफरस ट्री, है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि कॉनिफरस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ट्रीज कौन कौन से होते हैं? पाइन, साल, सिल्वर फॉर स्प्रूस। नेक्स्ट हाइट इज 3600 मीटर्स एंड मोर, राइट। और कौन कितनी हाइट है? दूसरी जो है 3600 मीटर्स और मोर, दैट मीन्स और ज्यादा हाइट पे, हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मैंने मतलब आपको क्या बताया? हाइट। हायर एल्टीट्यूड और हाइट वो कहाँ पर है? इन हिमालयाज नियर स्नो लाइन, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर वाली हाइट पे जाते हो आपको बहुत ज़्यादा स्नो मिलता है, तो एकदम स्नो लाइन हो जाती है। तो वहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं? तुंद्रा वेजिटेशन, दैट इज एल्पाइन एंड शॉर्ट ग्रास। एल्पाइन एंड शॉर्ट ग्रास, ठीक है। और वहाँ पे ट्रीज कैसे होते हैं? सिल्वर फिर एंड ब्रिज। सिल्वर फिर एंड ब्रिज, ठीक है। अब इधर जो हमने ट्रीज पढ़े, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं देखो। अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट, स्पेशली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कॉनिफरस फॉरेस्ट किस तरह का होता है। द ट्रीज हैव कॉनिकल शेप। आई गिव यू एन एग्जाम्पल राइट नाउ कि अगर आपने क्रिसमस ट्री देखा है तो वो कैसे शेप का होता है? कॉनिकल शेप में होता है ना, कोन शेप में होता है, राइट। उसकी ब्रांचेस कैसे होती है? नीचे की तरफ गिर रही होती हैं, है ना। ब्रांचेस कैसे होती है? नीचे की तरफ, इट इज लीनिंग टुवर्ड्स द सरफेस। क्यों? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में, बहुत ज़्यादा ऊपर वाली हाइट पे, जितनी ज़्यादा ऊपर वाली हाइट पे होगा वहाँ पर क्या होगा? स्नो बहुत ज़्यादा होगा, राइट। जब स्नो बहुत ज़्यादा होता है तो अगर वो, आप ये समझो कि लीव्स के ऊपर अगर पूरा दिन स्नोफॉल होगा, वाटरफॉल होगा, तो वो लीव्स खराब हो जाएंगी, राइट। तो अगर उनकी ब्रांचेस जो है वो लीन मतलब नीचे की तरफ होंगी तो स्नो क्या होगा? सीधा सीधा नीचे गिरेगा, है ना। तो दैट इज वाई कॉनिफरस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं। स्लाइड डाउन टुवर्ड्स द लैंड। ट्रीज लीव्स आर लॉन्ग, पॉइंटेड, स्टिकी। उसकी जो लीव्स होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं, लॉन्ग होती हैं और स्टिकी होती हैं। क्यों स्टिकी होती हैं? बिकॉज स्नोफॉल पूरा टाइम होता है तो ह्यूमिडिटी is there for a longer time. Okay, then the last is comes the tidal forest, जिसको अपन मैनग्रूव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मैनग्रूव फॉरेस्ट। नाउ कम्स द मैनग्रूव फॉरेस्ट, that is tidal forest. Tidal forests are located in the delta region of rivers along the coast. अब tidal forest हमें कहाँ पर मिलते हैं? रिवर्स के कोस्ट के वहाँ पर जहाँ पे रिवर्स होती हैं, जिसको हम डेल्टा रीजन्स भी बोलते हैं। These forests are found along Gujarat coast and in the marshy lands or along the Bay of Bengal coast, right? You will find forest, tidal forest you will find in Gujarat, right? You will find along the Bay of Bengal coast. और यहाँ पर किस तरह के ट्रीज होते हैं? सुंदरी एंड चेयर, ठीक है। विच आर द ट्रीज फाउंड इन द टाइडल फॉरेस्ट? सुंदरी एंड चेयर, ठीक है। अब दीज वर द 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस एंड विच एरिया। नाउ कम्स फॉरेस्ट। अब ये जो हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, तो ये फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स क्या हैं और उनकी यूजफुलनेस क्या होती है? व्हाट आर इट्स यूजफुलनेस? फॉरेस्ट आर यूजफुल टू मैनकाइंड इन मेनी वेज। किस तरह हैं? Timber wood is used, timber wood from teak and sal is used for furniture making. फिर wood of sundari trees of Sundarban, it is used for boats. फिर स्पोर्ट्स गुड्स एंड पैकिंग बॉक्सेस जो होते हैं वो भी बनते हैं वुड के। कौन से वुड के? वुड ऑफ पाइन एंड चिट ट्रीज जो होते हैं उसकी वुड से स्पोर्ट्स गुड एंड पैकिंग बॉक्सेस बनते हैं।
टर्पेंटाइन जो होती है, जो हमें जो ऑयल टाइप नहीं होता है, राइट, टर्पेंटाइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिक्विड फ्रॉम चिट्रीज, चिट्रीज से हमें जो है टर्पेंटाइन मिलता है। सैंडलवुड जो होता है इट इज़ यूज टू प्रिपेयर परफ्यूम, ऑयल, कॉस्मेटिक्स, इन सब से सैंडलवुड बनता है। फिर जेन बास्केट्स, टॉयज, गुड्स फॉर होम डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें कौन से वुड से बनती हैं? बैम्बू के ट्री के वुड से, है ना। फिर फॉरेस्ट आर ऑल्सो यूज फॉर गिविंग अस लैक, दैट इज सीलिंग वैक्स जो है वो भी हमें वुड से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। रेजन्स, गम, रबर, हनी, केन एटसेट्रा, ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। तो ये जो फॉरेस्ट हमने पढ़े उसकी यूजफुलनेस, उसकी यूटिलिटी क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं उनके वुड से। फिर आंवला, बेहड़ा, हरडे, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, दे होल्ड अ मेडिसिनल यूटिलिटी, है ना। ये आंवला, बेहड़ा, हरडे, हम अश्वगंधा, ये सब हमारी मेडिसिन में काम आते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूटिलिटी ऑफ वेजिटेशन। अब कौन सा जो वेजिटेशन है वो कौन सी मेडिसिन के लिए काम आता है? सर्पगंधा, इट इज यूज इन हाई ब्लड प्रेशर। लिमड़ो, इट इज यूज एज बैक्टीरियल रेजिस्टेंट। तुलसी, विच इज यूज फॉर कोल्ड, कफ एंड फीवर। अर्जुन साड, ट्रीटमेंट फॉर हार्ट एलिमेंट्स, अगर हार्ट के कोई एलिमेंट्स है, डिजीज है, इट कैन बी क्योर। बिली, इट इज यूज फॉर गैस एंड कफ इम्प्योरिटीज। गाढ़ो, that is used for diabetes, fever, joint pain, etc. हर्डे, कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए, हेयर डिजीज है तो वी कैन यूज हर्डे। आंवला, वो क्या क्योर करता है? इट क्योर्स गैस, एसिडिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्योर करता है। कारंज, दैट इज यूज फॉर स्किन एंड डेंटल गम डिजीजेस। ये सारी जो हमें वेजिटेशन से, फॉरेस्ट से जो हमें मिलते हैं, इनकी मेडिसिनल यूजफुलनेस ये है। फिर दूसरा है बिसाइड्स लीफ प्लेट्स। आपको पता है ना वो पत्ते की जो प्लेट्स होती हैं वो कहाँ से बनती हैं? खाखरो, खाखरो लीफ से। कैच्यू फ्रॉम खेर ट्री बनता है। बीड़ी बनती है तिमरो लीफ से। ये सारी चीज़ें भी जो है वेजिटेशन से हमें मिलती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड फूड टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन फॉरेस्ट जो है, जो लोग वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो लोग यहाँ पे फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके लिए फूड भी प्रोवाइड करता है। दिस वे फॉरेस्ट contributes into a social and economic development of mankind. That is why it is said forest is very useful. और यही फॉरेस्ट को हम क्या करते जा रहे हैं? कट करते जा रहे हैं। अगर फॉरेस्ट कट हो जाएंगे तो देखो हमें कितना सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। ये तो सारे थे कि भाई फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और यूटिलिटी और मेडिसिनल यूटिलिटी। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस किस तरह है? फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? फॉरेस्ट इज यूजफुल टू ब्रिंग रेन। देखो फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं, हमारी रेन कम होती जा रही है ना। दे कंट्रोल द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स। रेन ही नहीं आएगी तो ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन। फॉरेस्ट को कट करेंगे, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारा ऑक्सीजन जो है, राइट, तो दे प्रोवाइड ऑक्सीजन। फॉरेस्ट कंट्रोल्स फ्लड। अगर हम फॉरेस्ट कट करते जाएंगे तो फ्लड्स बहुत ज़्यादा होते जाएंगे। दे ऑब्जर्व हार्मफुल गैसेस बिकॉज वी लेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो वो कौन टेक इन करता है? ट्रीज, पढ़ा है आप लोगों ने साइंस में। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ये जो सॉइल को हमने सॉइल इरोशन, सॉइल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा है सॉइल इरोशन को भी प्रिवेंट कर सकता है, कम हो सकता है अगर फॉरेस्ट रहेंगे। फॉरेस्ट मेंटेन्स ग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट्स द एडवांसिंग डेजर्ट। अगर हम फॉरेस्ट कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेजर्ट बन जाएगा, राइट। फॉरेस्ट इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एनहांसेस नेचुरल ब्यूटी। फॉरेस्ट प्योरिफाइज द एयर। Forest is a very good place or ideal place for adventures, tourism activity. Some forests are reserved with reference national parks, sanctuaries और biodiversity बनी हुई हैं यहाँ पर forest में। तो ये सब environmental utilities हैं। And if we cut forest तो ये सारी problems भी हो जाती हैं, right? So it is very important that we should conserve forest. हमें forest को protect करना है, conserve कैसे हम कर सकते हैं? Ecosystem is formed due to the interrelation of biosphere and mankind. But due to the anti-environmental activities and selfishness of man, the ecosystem is disturbed. आप लोगों ने साइंस में या जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, राइट, ये
जो है इंटर रिलेटेड है, ये जो है इंटरकनेक्टेड है, जो भी लेयर्स हैं बायोस्फीयर्स जो है और मैनकाइंड ह्यूमन बींग्स जो है इनके साथ इंटर रिलेटेड है। एक भी स्पीशीज, राइट, कोई भी चीज़ में अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन हम अपनी ग्रीड, मैन जो है ग्रीडी है, मैन अपनी सेल्फिशनेस के लिए इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। Man's unstable desire to produce land is responsible for the destruction of forests. अपनी greed के कारण forest को destroy करता है. Forests are destroyed because population इतनी increase होती जा रही है, right? तो उनके रहने की जगह, इसके लिए forest cut करते जा रहे हैं. Policies of establishing industrial units away from residential areas, जहाँ पर forest है वहाँ पर industries बनी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बन रही हैं तो फॉरेस्ट कट करके इंडस्ट्रीज बना रहे हैं. अर्बनाइजेशन यानी शहर बढ़ते जा रहे हैं. मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, डैम्स, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, उसके कारण फॉरेस्ट को कट किया जाता है. रोड्स बन रहे हैं, क्योंकि अगर अर्बनाइजेशन, आप शहर बढ़ाते जाओगे, अर्बनाइजेशन बढ़ाते जाओगे तो आपको रोड्स भी चाहिए, तो रोड्स के लिए भी फॉरेस्ट कट करते हैं. झूम कल्टीवेशन हमने पढ़ा है, उसके कारण फॉरेस्ट जो है कट कर रहे हैं. टिम्बर वुड हमें चाहिए, फ्यूल वुड चाहिए. फॉरेस्ट फायर हो जाती है, कई बार आप देखते हो ना कि जंगल में से आग निकल रही होती है, फॉरेस्ट फायर हो रही है. वो फॉरेस्ट फायर के कारण क्या हो रहा होता है, पूरा जंगल जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है. इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्प्टेड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. Adverse effects are noticed due to the forest destruction. These includes decrease in rainfall, drought, global warming, greenhouse effects, advancing desert, होमलेस और वाइल्ड एनिमल्स. अब जब फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं तो रेनफॉल कम हो जाती है, ड्राउट यानी सूखा पड़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, डेजर्ट्स बढ़ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ जो है वो अपना होम जो है वो गुम कर देती है, मतलब दे लूज देयर होम्स, क्योंकि उनका होम क्या है, वाइल्ड लाइफ का होम क्या है, जंगल, फॉरेस्ट. So according to the national policy of 1952, there must be forests of over 33% of the total geographical area of the nation. ऐसा बोला जाता है कि जो भी हमारे नेशन का, हमारी कंट्री का जो एरिया है उसमें से 33% जो है ना वो फॉरेस्ट होना चाहिए, राइट. 33%. हमारी इंडिया में, इन इंडिया फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर 23%. हमारी इंडिया में कितना है, 23%. ऑलरेडी 10% कम है. While forests occupy only 10% of land in गुजरात, और गुजरात में 10% है. एक तो ऑलरेडी 10% हम कम है, 33 होना चाहिए, 23 है, उसके ऊपर फिर हम और फॉरेस्ट कट करते जा रहे हैं, तो इसीलिए वी आर फेसिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल. Thus, it is necessary to prevent destruction of forests, and so protection and conservation of forest is necessary. इसीलिए important है कि we have to preserve, we have to conserve, we have to protect forest. ठीक है. अब फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द रेमेडीज. In order to protect and conserve forests, Government of India has implemented National Forest Policy in 1952. In 1980, Parliament passed a legislative act. 1980 में legislative एक law बना, right? And in 1988 एक new national policy जो है वो announce हुई. उन्होंने क्या बताया, फॉरेस्ट इज आर नेशंस रिसोर्स. फॉरेस्ट जो है हमारी कंट्री का रिसोर्स है, इसीलिए हमारी ड्यूटी बनती है, इट इज आर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, इट इज आर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, राइट. वी हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. ट्रीज फेलिंग, फेलिंग का मतलब होता है कटिंग. ट्री कटिंग शुड बी स्टॉप. हैवी पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड टू दोज हु कट ट्रीज इलीगली. अगर आप ट्रीज कट कर रहे हो तो जो कट कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो लोग लॉज ब्रेक करते रहेंगे. To increase public participation in Van Mahotsav social forestry, trees must be planted on either side of the wasteland, river, railway tracks and roads to raise them. वन महोत्सव होता है, सोशल फॉरेस्ट्री होता है, उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और बहुत सारे ट्रीज को जो है प्लांट करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए. Create awareness about the environment through environmental education school syllabus. अभी आपको स्कूल सिलेबस में रखा है, क्यों, अवेयर करने के लिए, है ना. तो एनवायरनमेंट रिलेटेड डेज भी जो है हम सेलिब्रेट करते हैं. 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जुलाई मंथ जो है वो वन महोत्सव मंथ होता है, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, राइट.
Then we should also take precautions to avoid forest fire. जो अभी मैंने बताया, जो forest fire कभी भी हो जाती है, पूरा जंगल जो है वो बर्बाद हो जाता है, उसको हमें precautions लेने चाहिए कि forest fire ना हो. यूज रिन्यूएबल एनर्जी. हमें रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक सोलर एनर्जी जो सन से मिलती है, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी, राइट, जो विंड से है, राइट. अब ये सारी एनर्जीज जो है हमें रिन्यूएबल एनर्जीज यूज करनी है विच कैन बी रीजनरेटेड. हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ये वुड वगैरह की जगह से, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज की जगह हमें रिन्यूएबल एनर्जीज यूज करनी चाहिए. Explain the importance of forests to people through broadcasting media and bring पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट. और हमें लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, अवेयरनेस रखनी चाहिए कि हाउ फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस. इज इट क्लियर टिल हियर? विद दिस we end the chapter.